warm welcome you watching the Wednesday edition of This Is Exclusive with me, Shavan Sen. Ladies and gentlemen, tonight we put the spotlight on three very special stories. One, of course, is the headline-setting interview of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, the firebrand politician of the Bharatiya Janata Party. For the first time, he makes it very clear. What does he essentially see in the days to come as far as Sambhal is concerned? There are other contentious issues. For the first time, he speaks on it with Editor-in-Chief Arnab Goswami. Then, of course, we take you through another special story coming in from the Indo-Bangladesh border. Ladies and gentlemen, with the gravest of provocation, we have seen how our security forces have been able to thwart attempts of smuggling and infiltration. Yet another attempt of Yunus of provocation has completely failed. And finally, the interview with the newly appointed ISRO chief, Dr. V. Narayan. What is it that he sees as his agenda for ISRO in the next 2 years? All this and much more in this edition of This Is Exclusive. But first, let's take a look at the headlines we're tracking. And this up. मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास नहीं, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। In Uttar Pradesh Chief Minister's most headline-setting interview, Yogi Adityanath says permanent solution required to solve the Sambhal problem. एक हैं तो सेफ है। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बारे में कहा, अगर एक हैं तो सेफ है। इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है, प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। Yogi Adityanath reiterates Hindu unity pitch, says important for Hindus to be united in current political situation. भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। UNIS's forces provoke BSF at the border. BSF puts nation first, remains unmoved by UNIS's provocation attempt. Defense scientist Dr. V. Narayanan appointed as the new chairman of the Indian Space Research Organization to take office starting 14th of January, bringing to you that exclusive interview in a short while from now. Ladies and gentlemen, what was already seen as a political obituary of BJP's firebrand leader Yogi Adityanath after the feeble show of the party at the Lok Sabha votes. But they were completely wrong. He rose like the phoenix from the ashes. A stellar performance in the bipole elections, cementing his position as the undisputed leader. Ahead of Kumbh, Yogi Adityanath sat down with Editor-in-Chief Arnab Goswami for this year's biggest political interview. Now let's take you through some of the sharpest responses on issues that really matter. First, it's the big statement made by Yogi Adityanath on Sambhal. Let's take you through what is it that the Chief Minister essentially believes would really be the right answer to those who have been trying to meddle the situation in Sambhal. Sambhal, remember, is a district in Uttar Pradesh that everyone has been talking about. Chief Minister Yogi Adityanath said the problem must be treated with surgery. In the clearest ever position taken by Yogi Adityanath on Sambhal controversy, Yogi talks about need to permanent solution in Sambhal, making a very strong case for Sambhal. Take a look.
देखिए, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने सर्वसम्मति से अयोध्या में से राम जन्मभूमि से जुड़े हुए वर्षों के विवाद का एक सर्वसम्मत समाधान दिया है और हमेशा के लिए विवाद शांत हुआ। वहां पर सर्वे का आदेश भी संभल में माननीय न्यायालय ने दिया। बिल्कुल, केवल सर्वे होना था, बिल्कुल, कोई भी अन्य नहीं। और ऐसा नहीं कि 19 को सर्वे हुआ, 21 को सर्वे हुआ, 24 को सर्वे होने जा रहा था। 24 को जिस तरीके से वहां पर फिर शरारत की गई, जिस तरीके से माहौल खराब किया गया 24 नवंबर को, ये सबके सामने आया। देखिए, हिंदुओं की सहनशीलता देखिए आप। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास नहीं, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। मैं प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाणों की चर्चा होती है तो क्या इस पे चर्चा करेंगे? नहीं कर सकते। योगी जी, एक अनुमति दें। हाँ। ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। Well, it's a pinpointed attack. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath calls the Waqf board a land mafia. In fact, also makes a very strong statement, says we'll take every inch of the land. For the first time ever, you've actually heard a leader making his position very clear when it comes to the Waqf. वो भारत को डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को देखना चाहते हैं जी, जिनका नजरिया वह है जी, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे। वे नहीं समझ पाएंगे। जो अपने को एक्सीडेंटल कहते हैं, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे। भारत को वही समझ पाएगा जो भारत की इस आध्यात्मिक परंपरा को, जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, शक्ति की परंपरा है, इस परंपरा के प्रति श्रद्धावनत हो जी, वही भारत को जान पाएगा। एक और मुझे लगता है कि उसकी चिंता नहीं करनी है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं लोग। इनको इससे ज्यादा नंगा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मुंह दिखाने लायक बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे। एक दूसरी स्थिति है, जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी, अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए।
कटेंगे तो बटेंगे, to एक है तो सेफ है. Slogans that have ensured that the Bharatiya Janata Party wins at least 2 state elections. This is why Yogi Adityanath says he believes that Hindus should be united. हिंदू एकता और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे की पूरक है. याद रखना, मैंने एक बार कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे. जी, ऐसे ही नहीं कहा था. इतिहास इस बात का गवाह है. एक हैं तो सेफ हैं. प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बारे में कहा, अगर एक हैं तो सेफ है. और याद करिए, इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है, प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है. और 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था जहां पे प्लान होता था, कैराना से, कांधला से, संभल से. और आज फिर से प्लान अब अपराधी और माफिया कर रहे हैं, वे देशद्रोही तत्व कर रहे हैं. आज यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, क्योंकि आज उसको जो जाति के नाम पर, देखिए, इस एकता से सर्वाधिक परेशानी किसको? परेशानी उसको है जिसने जाति की दुकान खोल करके सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का ठेका ले रखा है. जो लोग विदेशी पैसे के बल पर जी इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये जातिवादी शक्तियां वही हैं, वही काम कर रही हैं जो किसी कालखंड में किसी देशद्रोही ने किया है.